الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected President, Board of Trustees, Professor Ajit Haidar Sahab, Manager Shia PG College, Mr. Abbas Bhutia Shamsi Sahab, Senior Member of the Managing Committee, Dr. S.S. Takvi Sahab, Professor Rajesh Shukla ji, Dr. M.M. Ajaz Jabbar Sahab, Dr. Pradeep Sharma ji, and Dr. Sushil Kumar Singh from Science Tech Institute, which is being run by Manraj Kumar Society. And Dr. Muhammad Mia Sahab, our respected principal. This is my privilege to inform that this conference is going to provide a wide platform for researchers, professionals, scholars and academicians to exchange and share their knowledge, information, new ideas and experience in person with their peers expected to join from different parts of the world, as more than 250 participants from our country and abroad will participate in this conference, and 27 invited talks by experts will be delivered. This gathering will help the delegates to establish research organized relations as well as to find international linkage for future collaborations in their career path. This conference concerns the application of the latest interdisciplinary studies to all aspects of education, research and technology. The objectives of this conference are to explore the experimental, theoretical and scientific data analysis foundation of interdisciplinary studies. I am sure that the deliberations at the conference would help open new grounds for the researchers and professionals with different expertise, specialties and techniques to enhance their skills in the field. I would like to tell the guests as well as the participants that so many awards have been put in this conference. First award is Khatib Akbar Maulana Mirza Muhammad Athar Award, which will be given to two participants for best paper presentation in humanities. D.S. Shukla Award, Manraj Kumar Singh Society Award, Dr. Shalini Srivasu Memorial Award, Rani Kanij Award and Begum Taki Hassan Award will also be provided. I wish all the best to the participants, and now I will start with a message of Janab Maulana Yasuf Abbas Sahab, who is Secretary Majlis Ulema of Shia College. He is not here at this time in the library. He is in Jaipur. He has sent a video message. It would be displayed on the screen. Mr. Harshit.
ये ना सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब बीवी श्रीवास्तव जी को, तो जिन्होंने इतने अच्छे वक्त, इतने कम वक्त में इतने अच्छे तरीके से ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जो 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है, जो शिया कॉलेज साइंस टेक के ज़रिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मैं मजलिस उलमा शिया कॉलेज की जानिब से इस पूरे कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की अल्लाह से दुआ करता हूँ। और इस तरीक़े की कॉन्फ्रेंसेस जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मुनक़िद होती हैं, उसमें शिया कॉलेज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कोरोना काल के अंदर इस वक्त हालात इस वक्त पूरी दुनिया के बिगड़े हुए हैं, उसमें जिस तरीके से शिया कॉलेज ने अहम भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं अपने तमाम मेहमानान जो हमारे गैर मुल्की, हमारे मुल्क के बाहर से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर मोहतरम जनाब प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब और शिया कॉलेज के मैनेजर हमारे जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब पूरी तरीके से इसके अंदर शरीक हैं। मैं आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Now, I welcome Dr. Sarwat Taqi Saab, who is a member board of trustees. Sound बंद कर लीजिए, please. I welcome Dr. Sarwat Taqi Saab, who is a member of board of trustees, and two awards have been placed by Dr. Sarwat Taqi Saab. I have announced it also earlier. Now I invite Mr. S. Abbas Murtza Shamsi Saab, who is the manager of the Shia PG College, for welcoming the guests and saying few words in the conference. इनके साउंड कम है, साउंड को बाकी लॉजिकल है। धन्यवाद डॉक्टर बीबी श्रीवास्तव जी। आज शिया डिग्री कॉलेज और साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रन बाय MKACS एजुकेशनल सोसाइटी के ज्वाइंट तत्वाधान में हो रहे इस कॉन्फ्रेंस, इसका टॉपिक है एडवांसमेंट इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ICAIR 2021। ये इसकी सदारत कर रहे हमारे शिया डिग्री कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रेसिडेंट, हम लोगों के सरपरस्त प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, हम लोगों के सरपरस्त और हमारे शिया डिग्री कॉलेज के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और हमारे कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के सर्वे सर्वा जनाब समीर हसन तकवी साहब, हमारे यहाँ पर मौलाना याकूब अब्बास साहब तशरीफ नहीं रखते, जो हमारे कॉलेज के
मजलिस उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और जिनकी क़यादत में कॉलेज इन दुनाला दोगुनी तरक्की करके आगे बढ़ रहा है, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं और वो चीफ चेयरपर्सन हैं आज के। उनका भी हम दिल्ली से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग के बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र यादव साहब जो NIHFW अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ न्यू दिल्ली हैं, ऑनलाइन हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं MKSES एंड को कन्वेनर हैं प्रोग्राम के, उनका भी कॉलेज के मैनेजर होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे डायनामिक प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मियाँ साहब, उनका इस्तकबाल क्या किया जाए, ये तो उनका कॉलेज है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हम लोगों के बीच में जनाब एजाज अब्बास साहब जो हमारे सरपरस्त हैं और जानशीन खतीब अकबर हैं, उनका भी इस्तकबाल। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जो अपनी सेवाएं टेक्निकल गतिविधियों से दे रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और इस प्रोग्राम को जहां जहां भी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी जो भी सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं हार्दिक इस्तकबाल अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वेलकम एड्रेस करने की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, इसमें कोई शक नहीं कि शिया डिग्री कॉलेज ने पिछले दिनों जिस तरह से तालीम के मैदान के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं, और चाहे वो नेशनल सेमिनार हो, इंटरनेशनल सेमिनार हो, या इवन आम आदमियों की खिदमत के काम हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती हैं कॉलेज की पढ़ाई के अलावा, उसके अंदर जिस तरह से योगदान कॉलेज दे रहा है, उसके लिए हम अपने कॉलेज के जो भी हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे स्टाफ हैं, उन सब का मैं बहुत का धन्यवाद देता हूँ। आज जब दुनिया के अंदर, जैसा कि भास्कर जी ने बताया, हर फील्ड में नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी, नई नई खोजें हो रही हैं, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे फिजिक्स का क्षेत्र हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, सब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से कोशिश करके नई खोजें कर रहे हैं। और आज दुनिया के अंदर तमाम खोज की वजह से हम पूरी दुनिया में उन तमाम, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे फिजिक्स की, हम आम आदमियों को कितना आसान, कितना अच्छा और कितना कंफर्टेबल बना सकते हैं, उसके लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो भी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से हम एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। हमें इस तिरंगे झंडे को पूरी दुनिया में लहराना है। इसके लिए हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, हमारे जो भी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके सर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो भारत के 130 करोड़ लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कुछ ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर होती है जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, तो जिन प्रतिदिन नई खोज करते हैं। और मैं जानता हूँ कि जहाँ हमारे साइंटिस्ट पहले जब भी जरा सा अच्छे पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर कोशिश करना चाहते हैं, तो उनकी पहली पसंद अमेरिका
यूरोप या और फॉरेन कंट्रीज होती। लेकिन आज वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो खोजकर्ता हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल हिंदुस्तान में भी मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो इन्वेंशंस हो रही हैं या जो भी तरक्कियां हो रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो साइंस के या जिस क्षेत्र में भी हो, उसके अंदर विश्व में भारत भी अपना योगदान देगा। ऐसा मैं अपने हिंदुस्तान के तमाम साइंटिस्ट, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम बुद्धिजीवियों से उम्मीद रखता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने वक्तन फवक्तन हमेशा जब भी जरूरत पड़ी इस देश की सेवा के लिए जो खिदमत की है, उसको पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा याद करता है। बहुत ज्यादा न कहते हुए, इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे बीबी श्रीवास्तव साहब, बड़ी मेहनत से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये इंटरनेशनल सेमिनार है जो 3 दिन चलेगा, 26 से 28 अक्टूबर तक। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 200 पेपर आ चुके हैं जो शाया भी होंगे, पढ़े भी जाएंगे, और इससे जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो मुस्तफीद भी होंगे, फायदेमंद, उनको फायदा भी मिलेगा, उनकी पढ़ाई के अंदर वो मदद होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक और बहुत अच्छा काम हमारे कॉलेज के अंदर तमाम हमारे जो भी टीचर्स हैं, साथियों ने किया है कि कई अवार्ड मैंने अभी देखा, भास्कर जी कह रहे थे, इसके अंदर रखा गया है। ये उन तमाम लोगों के प्रोत्साहन के लिए भी है जो अभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि शिया डिग्री कॉलेज और साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रन, जो कि MKSTS एजुकेशन सोसाइटी, दोनों के तत्वाधान में जो प्रोग्राम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए और इस तमाम जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए एक मील का सब पत्थर साबित होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आप तमाम लोग अपना हर तरह का सहयोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Mr. Abbas Murtaza Shamsi Sahab, manager of Shia PG College. Professor N.B. Singh, the Emeritus Professor of Chemistry, has also joined with us. I would like to say a few words about Professor N.B. Singh. Professor N.B. Singh, former head chemistry department, former dean faculty of science, DDU, Gorakhpur University. Gorakhpur is presently emeritus professor of chemistry department, SBSR and Research and Technology Development Center, Sharda University, Greater Noida. Dr. Singh was an Alexander von Humboldt Fellow and has worked for University of Kassel and TU Dortmund University, Germany. Dr. Singh was postdoctoral fellow at Free University of Brussels, Belgium during 1973-1974. Dr. Singh is a recipient of ITAS Award 2002 and ICS Gold Medal and Lifetime Achievement Award, Indian Association for Solid State Chemists and Allied Scientists at GIT, and Lifetime Achievement Award, Indian Association for Solid State Chemists and Allied Scientists at GIT, Vellore, on 21st November 2009. For the contributions in the area of solid state chemistry, Dr. Singh is former president of Indian Association for Solid State Chemists and Allied Scientists. His citations are 2,633, H index 25 and I-10 73. So we are very proud of that Dr. N.B. Singh, Professor N.B. Singh is with us, and he will deliver lecture after this inaugural session as chief guest on the topic green synthesis of nanomaterials and their applications, with special reference to silver nanoparticles. Now I invite Professor Rajesh Shukla ji, who is professor in Department of Physics, University of Lucknow, and has written so many authentic books on mechanics, quantum mechanics, and instrumentation.
Around 200 research papers have been published by him, and recently Shikshak Shri Samman has been given to him by the state government. Now I invite Professor Rajesh Shukla to say a few words in this conference. Professor Rajesh Shukla is the chairperson, chief chairperson of this conference also. Thank you, Dr. B.B. Srivastava ji. Good morning to all of you. I welcome all the participants and all the invited speakers who are participating in a 3-day international conference on advancement in interdisciplinary research. This is a jointly organized by CRPG College and Science Tech Institute in the difficult times of pandemic COVID-19. First, I would like to thank the Professor Aziz Haider, President Board of Trustees CRPG College, Janab Maulana Yasub Abbas, Secretary Masjid-e-Ulema, Mr. S. Abbas Murtaja Shamsi, Manager CRPG College, Mohammad Mia, Principal PG CRPG College, Dr. M.M. Abu Tayyab, Director Self-Finance and Coordinator of this conference, Dr. Sweta Singh, President MKS Educational Society, Dr. Sushil Kumar Singh, General Secretary MKS Educational Society, Dr. B.B. Srivastava, Head Department of Physics, CRPG College, Dr. M.M. Abbas and Dr. Pradeep Sharma, Dr. M.K. Shukla ji, Dr. K.C. Dubey, Dr. Dilshad Ansari, Dr. Saad Hussain, Dr. Tanvil और जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूं उनका भी, Dr. D.K. Yadav, Technical Coordinator. I would like to welcome Professor N.B. Singh sir, Chief Guest of this conference. This conference includes the various topics pertaining to interdisciplinary research will be discussed in the technical sessions. These topics are on medical science, material science, computer science, agriculture, physical sciences, humanities, and commerce. In this conference, there are 27 invited talks, more than 100 oral presentation, and 25 poster presentation. We received more than 150 full-length research papers and more than 250 abstracts on different topics. The proceeding is published with ISBN. We are in a process to publish books with ISBN for contributing paper presented in this conference. In this conference, there are many awards. These awards boost the research scholar to further work in the research. I and our team is extremely overwhelmed with the response of this conference. This would not be possible without your contribution. So a heartfelt thank you to all the participants and invited speakers. I wish the conference a great success and take this occasion to congratulate all the members and office bearers for organizing this event. My best wishes to organizers and participants. Once again, I welcome everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Professor Rajesh Shukla ji. I would like to apprise the gathering here that we are publishing proceedings bearing ISBN number, ISBN, and a souvenir is also being published. And it's a matter of pride that Deputy Chief Minister Professor Dinesh Sharma has also given his motivational message. Honorable Vice Chancellor, Lucknow University, has also sent us a very motivational message. Maulana Hamidul Hasan Saab, who is the President, Majlis-e-Ulema, Maulana Yasub Abbas Sahab, who is Secretary Majlis-e-Ulema, Dr. Syed Akhtar Hassan Rizvi Sahab, who is the Secretary, Shia College and Allied Institutions, Professor Aziz Haider, who is the President, Board of Trustees, Shia College and Allied Institutions, Raja Sahab, Mahmudabad, Vice President, Shia College and Allied Institutions, Mr. Shariful Hassan Jaidi Sahab, who is Vice President of Shia College and Allied Institutions, Mr. Hassan Shabbir, who is the Manager of Shia Inter College,
Professor Rajesh Shukla, Professor Somesh Shukla, and other distinguished persons have also sent us very, very motivational message. We thank all of them for this. Now, I invite Dr. S.S. Takvi Saheb, who is a senior member of Managing Committee and who has served this college in the capacity of principal and as head of the Department of Mathematics, and he is very expert academician and teaches the class at this age also. We are proud of him, and I request him to say a few words to motivate us. वॉल्यूम डाउन करिए, अपना वॉल्यूम डाउन करिए, आवाज गूंजेगी, इसको डाउन करिए, बिल्कुल 5 पे करिए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो इस प्री कॉन्फ्रेंस को अरेंजमेंट करने में जिन लोगों का भी साथ हुआ है उन सब का बेहद मैनेजमेंट की जानिब से जनाब हमारे प्रेसिडेंट जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, हमारे मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी अब्बास मुर्तजा शिफी साहब, हमारे कॉलेज के रहनुमा डॉक्टर एजाज सर साहब और कॉलेज के जो यहाँ पर लोग हैं वो सब, इसमें स्पेशली मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला साहब, प्रोफेसर राजेश शुक्ला साहब चीफ चेयरपर्सन हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं और अपने वैल्यूएबल थॉट्स और जो वर्क है वो प्रेजेंट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और ये बहुत बड़ा काम हमारे कॉलेज का जो करने में साहब ने अपना रोल दिया है, प्रदीप शर्मा साहब, और इसी तरह से हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर हजरात और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सरवर तकी साहब जो मैनेजिंग कमेटी के गालिबन हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, और इसी तरह से हमारे आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मौजूद है। शुक्रिया तो बहुत कुछ है, जो हमें अपने कौम के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है जो इस कॉलेज में खिदमत दे रहे हैं और दे चुके हैं और देंगे। सामने वो तस्वीर मौजूद है जो मिर्जा खतीब अकबर मिर्जा अली मोहम्मद अजहर साहब की, जो हमारे अजीज तरीन उस्ताद एक तरह से कहेंगे दीनी उस्ताद, अपने दीन की तमाम बातें बताने के लिए और क्या कुछ नहीं उनके पास बैठ के हासिल होता था, तो उनका जाहिर है हम लोग ये यादगार बना रहे हैं इसी लाइब्रेरी में जो उनके नाम से मंसूब है। और बहुत बड़ी बात है कि इल्म का दरिया जहाँ से बहता है मौलाना साहब तकरीरों से, तो यहाँ पर लोगों के इस पूरे प्रोग्राम में मौजूद है रूहानी का, तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ है हमारे कॉलेज के लिए और हमारे कौम के लिए और हमारे देश के लिए और दूसरे देशों के लिए कि हम एकेडमिक माहौल को कायम रखे हुए हैं, जारी रखे हुए हैं और आगे पेश करते रहेंगे। साइंस ऐसी चीज है जिसका हमारे कुरान करीम में भी तस्वीर है, ये इल्म हासिल करने के लिए तवज्जो दिलाएगी। ये कुरान करीम में जगह जगह इंसान ये इल्म हासिल करो और इसको फैलाओ और दुनिया तक पहुँचाओ, दुनिया में इसका फायदा उठाने के लिए स्टेप उठाओ, गलत साइंस का इस्तेमाल ना, सही साइंस का इस्तेमाल। तो हमें जाहिर फिजिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, इस्लामिक एनर्जी कमीशन में खास से मुझे साइंटिस्ट चुना गया और मैं नहीं जा सका, ये हमारे कुरान करीम का इस्तेमाल नहीं आया कि मैं यहाँ मौजूद, वरना मुझे BRC में साइंटिस्ट की हैसियत से सन 66 में चुन लिया गया। और मुझे कहने में कोई आम नहीं, साइंस के मुताबिक मैं अभी भी लेक्चर देता रहता हूँ लड़कों को, अभी भी मेरे लेक्चर होते हैं साइंस पर तवज्जो दिलाता हूँ।
कि अपने देश में हमारे बच्चों का जहन साइंसी होना चाहिए। साइंस से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं और दुनिया को हम दे सकते हैं। इसमें हमें कहीं अपने जो एक्शन है उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल बताऊंगा, हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। यानी एनर्जी जो है आप वो हर चीज दुनिया की कम से कम एनर्जी पोजीशन लाने की अपने को बनाती है। तो हमारी भी ये कॉन्सेप्ट जो है ऐसी होनी चाहिए कि एनर्जी हमारी कम से कम ज़ाय हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। हमारी साइंटिफिक एनर्जी इतनी अहम है कि उसको हैमिल्टन प्रिंसिपल से मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। जो स्कॉटलैंड के अंदर साइंटिस्ट हैमिल्टन था और अपने 10 साल की उम्र में दुनिया की 12 जबानी सीख ली। 10 साल की उम्र, दुनिया के संस्कृत भी जानते थे, अरबिक भी, जर्मन भी, 10 साल की उम्र में, इंग्लिश, फ्रेंच, वो रीडिंग से वो हैमिल्टन और उन्होंने इतना बड़ा प्रिंसिपल 22 साल की उम्र में दिया। हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। आप मैं इसका थोड़ा सा लाइक कर रहा हूँ। ये भी तो हमें अपने एनर्जी को सेव करके उसका ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना, और यही है साइंस का सबसे बड़ा इस वक्त जो आपकी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस टॉपिक का एनवायरनमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। जाहिर है ये इसी चीज को तवज्जो में रखेंगे कि हमारे साइंस के एक्शन जो है वो लिमिटेशन भी उन पर है, हमारा एनर्जी ज़ाय ना हो और हम एनर्जी को सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करें। तो हम तमाम चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम दुनिया की, यहाँ तक कि बीमारियों तक भी टैकल कर रहे हैं इसी साइंस की। तो इस पर मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा वक्त मैं दूंगा। और शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, कहने का। और दुआ है मेरी कि हमारा गाना तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे और दूसरे देशों में हमारे देश की पहचान सबकी ऊपर है। यही हम लोगों का मैसेज है और होना चाहिए, और यही हमारी एक्शन इसी तरह से होनी चाहिए। Thank you very much. A lot of thanks, sir. Dr. Takri Saab, a lot of thanks. Now, I invite Dr. M.M. Ajaz Abbas Saab for saying few words on this occasion. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे जनाब प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, मैनेजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर जनाब हफीज साहब, शिया कॉलेज के मैनेजर जनाब अब्बास मुर्तजा शमसी साहब, प्रोफेसर राजेश साहब, कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद साहब और इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मौजूद तमाम अफराद। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस एडवांसमेंट इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2021 ये हो रही है और बड़ा अच्छा मौका है जिसमें हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट से उनके ख्यालात सुनेंगे और उनके जो पेपर्स हैं उससे हम भी फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब डॉक्टर बीबी श्रीवास्तव साहब को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है और जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तमाम मेहनतें हैं जो आपके सामने। देखिए, ये साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। और आपकी खिदमत में यह करूं कि आज से लगभग 1250 बरस पहले की बात है कि हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनका जमाना था और केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा शख्स था उस जमाने का जिसका नाम जाबिर इब्न हय्यान लिखा। देखिए, फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं साइंस का एक वाकया आपको सुना रहा हूँ
और साइंस में जो चीजें हैं बुनियादी, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल अमल करके दिखाया जाता है। तो जिसका नाम जागरूक अभियान था, वो साल भर से ज्यादा अरसे से एक मसले में फंसा हुआ था और उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, जो केमिस्ट्री की थी। वो बहुत ज्यादा परेशान था, तो लोग उसको लिए हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए। उसने अपनी प्रॉब्लम, अपना मसला इमाम के सामने रखा और जैसे ही उसने इमाम के सामने प्रॉब्लम रखी, उसी लम्हे, उसी वक्त इमाम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने कहा कि मैं तो साल भर से ज्यादा अरसे से इसमें परेशान था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मसला कैसे हल होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आपने तो इसको फौरन, जैसे ही मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा और आपने सॉल्व कर दिया। तो इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जवाब दिया कि जाबिर, पहले सोचो, उसके बाद उस पर अमल करो। आप और कीजिए, पहले सोचो, उसके बाद अमल करो। आज साइंस की यही चीजें दोनों बुनियाद हैं। सोचना थ्योरी है और उस पर अमल करना प्रैक्टिकल कहलाता है। तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें आप लोगों के जो ख्यालात हैं और जो रिसर्च को सुनने का हमको मौका मिलेगा। और एशिया कॉलेज इस फील्ड में भी बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है कि जहाँ पर तालीम का मैदान है, जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, वहीं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए हम एक मरतबा फिर कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वालों को और खास तौर से जनाब डॉक्टर भास्कर श्रीवास्तव साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज अब्बास साहब। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, who is professor in NIH FW under the Ministry of Health, New Delhi. So he will join online. So, okay, so, very good morning, everyone. And I will, on behalf of organizing committee for this iCare 2021, I welcome to all the distinguished guests, delegates, and participants in this wonderful conference, which is going to be organized jointly by the CRPG College and Science Tech Institute under the aegis of MKS Education Society. So I'm really thankful to all the organizers for giving me this opportunity, because I'm also the part of this institute and I'm the student of Lucknow University also. So it's really a great privilege for me. So right now I'm working at assistant professor at National Institute of Health and Family Welfare, which comes under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So in this pandemic situation, first of all, I want to congratulate CRPG College and Science Tech Institute for organizing this wonderful event. I think it is a online, but it's a really, really wonderful conference, which is not possible in offline mode also. So I congratulate all the organizers, especially Science Tech Institute and MKS Educational Society, for organizing this wonderful conference. This international conference is certainly going to be a big platform for the researchers of all domains from all over India and across the country. I am closely associated with the Science Tech Institute and MKS Educational Society from last 1.5 years. Science Tech Institute is continuously promoting educational and research by organizing different types of training programs, workshops, faculty development programs, and conferences. It has become leading educational organization of North India, I can say, in last 1.5 years, because it has already, I think, more than 15 training programs and workshops they have organized. And this MKS Educational Society has its own publication house, under which the several publications have came in the form of edited books, textbooks, and many more.
it has been published around 50 books within a very short span of 1 year. The latest book of MK's publication, that is Digital Health in India, Evolution of Health Informatics, in which I am also one of the editor. It has been well recognized by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and very senior officials like Professor Dr. V.K. Paul from Niti Aayog. He is a member of Niti Aayog. Dr. Padam Singh, he is a former additional Director General of ICMR and Honorable Secretary of Ministry of Health and Family Welfare. He is a very senior IS. He has well recognized this particular book. So in this way, Science Tech Institute and MK's Publication House is doing wonderful job. So in the last, I must say that MK's Education Society is doing a wonderful job for the promotion of education, training, and research in the country. So I convey my best wishes for the grand success of this ICAR 2021. Thank you so much. Thank you, Dr. Dharmendra Kumar Yadav ji. A lot of thanks. Now I invite Dr. Pradeep Sharma ji, who is the Director of NCDRC, for saying few words. He has just say. So, 1 minute. Thank you. Respected guests and our senior members of Managing Committee and the organizers of the conference. I am not a scholar of the science. I basically from the humanities. लेकिन जैसा भास्कर भाई ने कहा, तो एक दो पॉइंट मैं इसमें रखना चाहता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो 3 दिन तक चलेगी, इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की है एशिया कॉलेज की तरफ से भी कि हम जो मल्टीडिसिप्लिनरी है, साइंस के साथ चाहे हमारे कॉमर्स के लोग हों, चाहे ह्यूमैनिटीज से हों या सोशल साइंस के हों, वो भी कंट्रीब्यूट करें। और ये सोच शिया कॉलेज की, जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन है, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो गाइडलाइन है, उसमें हमने बनाया कि हम केवल जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उस तक अपने कॉलेज को सीमित नहीं रखना चाहते, जिसको कहते हैं कि 360 डिग्री जो इनोवेशंस हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो हर तरफ आए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर लगातार काम हो। और हमारे मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में पिछले 2 साल के अंदर विशेषकर हम लोगों ने इस दिशा में बहुत काम किया कि एक तरफ पैंडेमिक की वजह से जब तमाम चैलेंजेस हमारे सामने आए, तो उन चैलेंजेस को टेकअप करना और उनको टेकअप करने के बाद कॉलेज को उन चैलेंजेस को पार करते ले जाना, ये एक बड़ा टास्क कॉलेज के सामने था। हमारे मैनेजिंग कमेटी की गाइडेंस में हमें खुशी है ये बात बताने में कि पिछले 2 साल में इस टफ टाइम के अंदर भी शिया कॉलेज ने वेबिनार्स, इनवाइटी लेक्चर्स, तमाम सेमिनार्स, उसके अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, ह्यूमैनिटीज के अंदर हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कराए। और जो नई टेक्नोलॉजी थी उससे कॉलेज के टीचर्स और बच्चों ने बहुत ज्यादा अपने को एक्सेल किया। पिछले 2 साल के अंदर 80 से ज्यादा हम लोगों ने डिफरेंट सेमिनार और वेबिनार ऑर्गेनाइज किए, जो अपने आप में लखनऊ के किसी भी कॉलेज द्वारा की गई एक बड़ी पहलकदमी है। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस उसी दिशा में एक और आगे के लिए हमारे लिए रास्ता बताएगी। और केवल कॉलेज के लिए ही नहीं, हम
पूरी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में एक नया माइलस्टोन ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस उम्मीद के साथ हम अपनी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देते हैं। Thank you very much, Dr. Pradeep Sharma ji. Now I invite Dr. Sushil Kumar Singh, who is the General Secretary, MKSES, co-convener, ICAR 2021. Thank you, sir. And first of all, good morning to all of you and all dignities, the management of the college, and all the persons who have joined national and international places. तो मैं सबको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कॉलेज के प्रबंध तंत्र को, जिन्होंने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी कि इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करा सकें। और धन्यवाद देना चाहते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी, जिन्होंने परमिशन दिया कि हाँ इस तरह के आप कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कॉलेज के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अजीज हैदर साहब को और डॉक्टर अब्बास, तो नाम में थोड़ा सा मुझे अगर बोलने में अगर हो रहा तो मुर्तजा शमसी साहब जी को, जो कि इस कॉलेज के मैनेजर हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर तकवी साहब को, और इसी कड़ी में डॉक्टर यसुब अब्बास साहब को, तमाम इस कॉलेज के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारा नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारा जो है समय बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे दोस्त का पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके सहयोग से ही आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं। सीआरपीजी कॉलेज और साइंस टेक रन बाय महाराज कुमार एजुकेशन सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी की चेयरमैन महोदया श्रीमती श्वेता सिंह, जो किसी कारणवश अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, उनका भी धन्यवाद हम देना चाहते हैं। उन्होंने भी परमिशन दिया कि इस तरह संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया जा सके। और इसी कड़ी में हम अपने गुरु प्रोफेसर आर के शुक्ला, जो जिस सोसाइटी के पैटर्न भी हैं, और अभी इनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक श्री से भी नवाजा गया, और ये सौभाग्य है कि मैं उनके अंदर में पीएचडी भी किया। और इस तरह के कार्यक्रमों में सर का बड़ा सहयोग रहता है। और तकनीकी रूप में अगर सहयोग की बात किया जाए तो एक हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के मित्र हैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, और सीआरपीजी कॉलेज के डायरेक्टर प्रदीप शर्मा जी ने, जिन्होंने पूरा लगातार 3 दिनों से हमारा सहयोग कर रहे हैं तकनीकी रूप से। तो मैं दोनों लोगों को, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी को और प्रदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑनलाइन है, और इसे कहीं ना कहीं जो है हमें टेक्निकल रूप से मजबूती मिलनी चाहिए। तो कॉलेज की तरफ से डॉक्टर प्रदीप शर्मा साहब और हमारे मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में है, इन दोनों लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया। और कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस डॉक्टर भुवन भास्कर श्रीवास्तव, जिन्होंने तो मतलब 15 दिन से ही लगातार हम लोगों का एक कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से हो सके, डेली कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहे। तो ये जा करके, और इसका ये उपलब्धि हुई कि हम लोगों ने 250 एब्स्ट्रैक्ट कलेक्ट किए, जिसमें 150 रिसर्च पेपर जो पब्लिश होंगे, हम इनको डिफरेंट वॉल्यूम में पब्लिश करेंगे। ह्यूमैनिटीज में, मेडिकल साइंस में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में और साइंस में लगभग 7 वॉल्यूम में हमारी बुक बनेगी। और इसको जो है हम लोग एक रेप्यूटेड रिव्यूअर से चेक करा करके इसको पब्लिश करेंगे। और जो हमारी प्रोसीडिंग्स भी पब्लिश हो रही है विद ICBN है, और ये अभी इसका कुछ पार्ट हम लोग इसका रिलीज करेंगे, जिससे भी हमारी पूरी पब्लिश होकर के नहीं आ पाई है। वो इट विल टेक 1 week, बट द पार्ट ऑफ द सम वी विल पुट इन द इनॉग्रेशन। सो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन सब लोगों ने कह ही दिया है। और मैं अभी इस बात को खत्म करता हूँ, और सबको जो फिर से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के यहाँ बैठे हुए प्रिंसिपल साहब, तनवीर हसन साहब, MK शुक्ला साहब, KC दुबे साहब, और तमाम जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर समीना सफीक, डॉक्टर TS नकवी एंड डॉक्टर मेहदी अब्बास, डॉक्टर सबीर आजाद,
सब इन सभी लोगों को जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिना आप लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी मैंने लगभग 30 कॉन्फ्रेंस में इस को भी करा चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये मेरी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इसमें कॉलेज का बहुत बड़ा सहयोग है। प्रबंध तंत्र का आदेश से ये हो पा रहा है, प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं बहुत लोगों को नहीं धन्यवाद बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा करता हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। Thank you, Dr. Sushil. Or now, with great respect, now I invite Professor Aziz Haider, who is the President, Board of Trustees of Shia College and Allied Institution, to give his presidential speech. It is a matter of great pleasure that an international conference is organized in Shia PG College on 26th October, 27th October, and 28th October. The conference, which is being organized, is on advancement in interdisciplinary research. And this is organized by Shia PG College and Science Technical Institute. I must praise two professors in this connection first. First is Professor Rajesh Shukla of the University of Lucknow, who is Chief Chairperson of this international conference. And secondly, I must thank Dr. B.V. Srivastava, Head Department of Physics, Shia PG College, Lucknow, who has taken great interest in organizing this conference. All of us know that the University Grants Commission is laying great emphasis on this topic, advancement in interdisciplinary research. The fact is that this is very, very important in the present scenario. We must do research in interdisciplinary way. Take humanities or science or commerce. The point is that this interdisciplinary research must be emphasized. When I was professor of English in our university, I laid much emphasis on making this interdisciplinary research. Or this is a matter of great pleasure that Shia PG College with Science Technical Institute has taken steps in organizing this conference. As I know that there will be a number of participants in this conference, the papers will be read, the lectures will be delivered, and the most important thing is that the best papers which will be presented in this conference will be presented with awards. And I hope that this conference will be a great success. I must name these persons who have taken much interest in organizing this conference. They are Dr. B.V. Srivastava, Maulana Yasir Abbas Mirza Shamsi, M.M. Abu Tayyab, Dharmen Yadav, Dr. Sushil Kumar Singh,
and there are many persons who are really engaged in organizing this conference. I welcome all these organizers and participants and hope that this conference will be a great success. Thank you very much. Thank you very much. Before proceeding, our page of proceedings and the proceedings will be published after the conference. The cover page will be and messages are within the cover page. I read will be by the member of the managing committee, Manager Sir, President Sir, Professor Rajesh Shukla, Ajay Bhai, Safi Sir, and Principal Sir. Please. अभी टफ है अभी सुशील और है अभी इसको अरे ये ना अरे इसको करना पड़ेगा है खाली पक्का Thank you very much. Now I invite Dr. Mohammed Nirmal, the principal of the college, for saying few words and vote of thanks. नहीं सही आप सामने माइक बोलिए Good afternoon to everyone for a warm welcome and thank you all of you in this international conference of 100-year-old prestigious Shia PG College of the University of Lucknow in collaboration with Science Tech Institute, India. I am much thankful to our President, Professor Janab Aziz Adar Sahab, Manager Janab Abbas Murtaza Shamsi Sahab, Secretary Majlis Ulema Fakhri Millat Dr. Yasuf Abbas Sahab, Chief Conference Chair Professor R.K. Shukla Sahab of the University of Lucknow, Chairperson of MKSES Educational Society, Mrs. Shweta Singh Ji, Secretary of MKSES Educational Society, Dr. Sushil Kumar Singh Ji. I am also thankful to all the keynote speakers, all the delegates, participants of the conference from all over the world for this international webinar on the behalf of the Shia PG College, Lucknow. Thank you very much. Thank you very much, Principal Sir. और अब मैं चाहूंगा सब लोग खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 हे। After this inaugural session, now technical session starts, and now I invite Professor NV Singh